चलिए, नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन बुक स्टडी सेशन। हम पढ़ रहे रॉबिन शर्मा की बुक द मोंक हू सोल्ड हिज फरारी। टुडे वी आर ऑन सेशन 11। तो फट से रिकैप करते हैं, कल हमने कहाँ छोड़ा था। ठीक है, तो कल हम बात कर रहे थे, योगी रमन बता रहे, जूलियन इज टेलिंग जॉन अबाउट योगी रमन एंड हाउ दीज पीपल, हमें लगेगा कि वो वहां पर रहकर भी गोल सेटिंग कर रहे थे। ठीक है, तो आज हमने जो बात करी इस सेशन रिकॉर्डिंग से पहले, वो थी अपना गोल लिखो। जब तक आपके पास गोल नहीं है, आप कहाँ जा रहे हो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो ये था एंड ही इज गिविंग हिम, लेट मी रीड द पैराग्राफ प्रायर टू इट। If I have seen farther than others, it is simply because I have stood on the shoulders of great teachers, replied Julian with humility. Here's another example. Yogi Raman was an expert archer, a true master. To illustrate his philosophy on the importance of setting clearly defined objectives in every aspect of one's life. क्या बोला है, इतना महत्वपूर्ण है। क्लियर और डेफिनेट, डिफाइंड, किसी चीज को डिफाइन करते हैं हम तो क्लियर मालूम पड़ता है कि वो क्या है। हर जिंदगी के हर पहलू का ऑब्जेक्टिव आपको लिखना है। एंड फुलफिलिंग वंस मिशन, ही ऑफर्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन आई विल नेवर फॉरगेट। हम भी देखें क्या डेमोन्स्ट्रेशन है। Near where we were sitting, there was a magnificent oak tree. The sage pulled one of the roses from the garland he habitually wore and placed it on the center of the trunk. He then pulled three objects from the large knapsack that was his constant companion whenever he ventured to distant mountain climbs, such as the one we were visiting. The first object was his favorite bow, made of a wonderfully fragrant yet sturdy sandalwood. The second item was an arrow. The third object was a lily white handkerchief, the kind I used to wear in the pocket of my expensive suits to impress judges and juries, Julian added apologetically. Yogi Raman then asked Julian to put the handkerchief over his eyes as a blindfold. ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है, उसे बता रहा है कि जिंदगी में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव का क्या महत्व है। तो क्या करा उन्होंने, उन्होंने एक रोज निकाला और एक जाड़ के पेड़ के तने के बीच में रख दिया। फिर उनके बैक पैक जो पीछे लेते हैं, उसी में एक बो था चंदन का, तीर कमान बोलते हैं। तो उन्होंने वो निकाला और एक व्हाइट हैंडकरचीफ निकाला। और योगी रमन देन आस्क्ड जूलियन टू पुट द हैंडकरचीफ ओवर हिज आईज एज अ blindfold. How far from the rose am I? Yogi Raman asked his pupil. 100 feet, Julian guessed. Have you ever observed me in my daily practice of this ancient sport of archery? The sage queried, in full knowledge of the response that would come. I have seen you strike the bull's eye from the mark almost 300 feet away, and I cannot recall a time that you have ever missed at your current distance. Julian noted beautifully. मतलब वो योगी रमन को कहते हैं कि आपको मैंने प्रैक्टिस करते हुए देखा है, 300 गज की दूरी से भी आप बिल्कुल बिना चूके अचूक निशाना आप लगाते हो। मैंने आपको प्रैक्टिस करते हुए देखा है। Then he, with his eyes covered by the cloth and his feet placed securely in the earth, the teacher drew the bow with all his energy and released the arrow, aiming directly at the rose hanging from the tree. The arrow struck the large oak with a thud, missing its mark by an embarrassingly large distance. I thought you were going to display more of your magical abilities, Yogi Raman. What happened? अभी ये तो हैरान हो गया जूलियन, बोलता है अरे मुझे तो लगा आप कुछ कमाल दिखाओगे, आंखों को पट्टी लगा के भी निशाना लगेगा, ये तो निशाना चूक गया। और आप तो इतने अच्छे आर्चर हो, इतनी प्रैक्टिस करी है आपने। We have traveled to this isolated place for one reason only. I have agreed to reveal all my worldly wisdom to you. Today's demonstration is meant to reinforce my advice on the importance of setting clearly defined objectives in your life and knowing precisely where you are going. You just saw confirms the most important principle for anyone seeking to attain their goals and to fulfill their life's purpose. You will never be able to hit a target that you cannot see. Pointer. इतने
माहिर, आई शुड से निपुण आर्चर है वो, और धनुर्धर है योगी रमन। करेक्ट, कि 300 गज से भी एकदम शार्प प्रॉपरली निशाना लगा सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने ब्लाइंड फोल्ड किया और वो देख ही नहीं पा रहे तो उनका निशाना भी चूक गया। तो जब आपको दिख ही नहीं रहा है तो आप उसको हिट कैसे करोगे? अगर आपको आपके माइंड के आंखों से दिख नहीं रहा है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, जब आप 50 के हो गए हो, 60 के हो गए हो, 70 के हो गए हो, आप कैसी जिंदगी जी रहे हो, अगर आपको माइंड के आंख में दिखता ही नहीं है तो आप वहां पर कभी पहुंचोगे नहीं। People spend their whole life dreaming of becoming happier, living with more vitality, having more an abundance of passion. Yet they do not see the importance of even taking even 10 minutes a month to write out their goals. My dear Kavita, taking even 10 minutes a month to write out their goals and to think deeply about the meaning of their lives, their dharma. Goal setting will make your life magnificent. Your world will become more richer, more delightful, and more magical. किससे? सिर्फ लिखकर, डिफाइन करके कि आपका गोल क्या है जीवन में। कितना सिंपल है यार। खुश हो जाओ ना, कोई तो बोल रहा है आपको कि आपको क्या चाहिए, वो लिखो। है ना, बचपन से तो किसी ने कुछ बोला नहीं हमें क्या चाहिए, है कि नहीं? You see, Julian, our ancestors have taught us that setting clearly defined objectives for what we desire in our mental, physical, and spiritual world is critical to their realization. In world you came from, people set financial and material goals. There is nothing wrong with this if this is what you value. However, to attain self mastery and inner enlightenment, you must set concrete objectives in other areas as well. Would it surprise you to know that I have clearly defined objectives with respect to the peace of mind I desire, the energy I bring to each day, and the love that I offer to all those around me? Wow, ये सोचने वाली बात है. Goal setting is not just for distinguished lawyers such as yourself who reside in a world full of material attractions. Anyone who wishes to improve the quality of their inner as well as outer worlds would do well to take out a piece of paper and start writing out their life aims. At the very moment that this is done, natural forces will come into play which start to transform these dreams into reality. My dear friends, आपका काम है लिखिए। इस दुनिया के रेस्टोरेंट में आए हैं, ऑर्डर तो दीजिए। खाली बैठे हैं कि चलो आ जाएगा कुछ ना कुछ खाना। रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो ले आएगा वेटर कुछ ना कुछ, बैठे हैं आ जाएगा। अरे कैसे आएगा, ऑर्डर तो दो, लिखो तो सही क्या चाहिए। आप लिखने लगोगे, नेचुरल फोर्सेस अपने आप काम में हरकत में आ जाएंगे आपके ड्रीम्स को रियलिटी में करने के लिए। What I was hearing fascinated me. When I was a football player in high school, my coach had constantly spoken of importance of knowing what we wanted from every game. Know your outcome was his personal creed, and our team wouldn't dream of stepping onto the playing field without a clear game plan that would lead us to victory. I wondered why. As I had grown older, I had never taken the time to develop a game plan for my own life. Superb. तो ये गेम प्लान फॉर योर ओन लाइफ, हर एक की लाइफ का एक गेम प्लान बनेगा। उसका आप हेडिंग दोगे गेम प्लान फॉर माय लाइफ। अभी गेम क्यों? गेम क्यों? गेम इसीलिए ताकि आप उससे ज्यादा अटैच ना हो जाएं। एक गेम खेलते वक्त कैसा मूड रहता है, चलो गेम खेलते हैं, ऐसे कि चल खेलते हैं, पहले मैं डाइन दूंगी या तू डाइन दे दे मैं खेलती हूँ। एक्साइटमेंट होता है गेम खेलते वक्त, यस और नो, हैप्पी रहते हैं। ये गेम ऑफ द लाइफ है, चलो लाइफ गेम खेलते हैं। ठीक है, ऐसे टेक इट एज अ गेम। गेम के रूल्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है,
बराबर ना, ऐसे नहीं कि हाँ हम पहले डिसाइड करते हैं ना, छुपा छुपी लुका छुपी खेल रहे तो भाई इसके पीछे नहीं जाना, भाई यहाँ तक ही इतनी एरिया में ही छुपना है। ऐसे लाइफ गेम का भी रूल्स बनाइए कि मैं 7:30 बजे खाना खा लूंगी, मैं 10 मिनट रोज हार्ट ऑफ रोज मेडिटेशन करना ही है, मुझे ये काम है ये है, ऐसे रूल्स बना दो अपने गेम के प्लान के, ठीक है। और रूल्स भी आप ही बनाइए अपने, ओके। Beautiful. I like this word. Game plan for my own life. Maybe Julian and Yogi Raman had something here. What is so special about taking out a sheet of paper and writing out your goals? How could such a simple act make such a difference? I asked. दिमाग में है ना, लिखना क्यों जरूरी है? वो पूछ रहा है। Julian was delighted. Your obvious interest inspires me, John. Enthusiasm is one of the key ingredients for the lifetime of successful living. Enthusiasm, another point. मैंने ना कहीं पढ़ा था दोस्तों, एंथुजियाज्म इज उत्साह, जोश। हर बात में लाइक बच्चे कैसे होते हैं ना, चलो ना मम्मी चलो ना एक और कहानी बताओ, अरे यार सो जा अभी बोर हो गए, नहीं वो नहीं, दे हैव सो मच एंथुजियाज्म एंड एनर्जी। मैंने कहीं पढ़ा था एंथुजियाज्म इज अ वर्ड फ्रॉम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लैटिन, लैटिन वर्ड है, और दो वर्ड से है, एंथूस, एंथूस वर्ड था, मेन वर्ड एंथूस। तो एंथूस मीन्स गॉड, जिसके अंदर गॉड है, गॉड का निवास इज एंथूस। तो जब हम एंथुजियास्टिक होते हैं, हमारे अंदर भगवान आ जाते हैं, भगवान का वास होता है, एंथुजियाज्म। इसलिए ना ऐसे मरे हुए मुर्दार नहीं रहना चाहिए, हमें यहाँ हंसते हुए एनर्जेटिक। भले ठीक है मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है अभी कंधे में, बट आई एम वेरी हैप्पी, मुझे याद भी नहीं है। करेक्ट, आई एम सो एंथुसियास्टिकली घर का काम कर रहे, क्रिएटिविटी। करेक्ट, मैंने कुछ तो भी क्रिएटिव डाला था, हाँ ट्रायंगल पराठेस। फिर मैंने बीटरूट काटा सैलेड का, तो उसको मैंने फ्लावर शेप में काटा था। ठीक है, ये एंथुसियाज्म है, नहीं तो वही काकड़ी काटो वही मूली काटो। डू इट इन अ डिफरेंट वे। हैंडकरचीफ कर रहे हो उसे कुछ अलग तरीके से रोल करके रखो, फ्लावर रख रहे हो कुछ अलग तरीके से करो। डू इट, बी, क्रिएट एंथुसियाज्म इन योर लाइफ। कोई गोली खाओगे एंथुसियाज्म नहीं आएगा, अपने को खुद क्रिएट करना है अपना एंथुसियाज्म, ठीक है। और एंथुस इज प्रेजेंस ऑफ गॉड, enthusiasm means God overtakes you. Okay. I am glad to see that you still have every ounce of yours. Earlier, I taught you that we think about 60,000 thoughts on an average day. By writing out your dreams, desires, and goals on a paper, you send a red flag to your subconscious mind that these thoughts are far more important than remaining 59,999 thoughts. Got my point? इसलिए लिखना जरूरी है क्योंकि इतने विचार आते हैं, लेकिन अगर हमने पेपर पेन लेके लिख लिया, तो हमने ये बाकी के जो बेकार के थॉट्स को पता चल गया कि भैया हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका तो वही वाला थॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। By writing out your desires and goals on a, okay, sorry, your mind will then start to seek out all opportunities to realize your destiny like a guided missile. It is really a very scientific process. Most of us are simply not aware of it. A moment of my partners are, a few of my partners are big on goal setting. Come to think of it, they are the most financially successful people I know, but I don't think they are the most balanced, I observe. Perhaps they are not setting the right goals. You see, John, life pretty much gives you what you ask from it. So beautiful and so powerful. Life pretty much gives you what you ask from it. Ask and you shall receive. अपने को लगता है हाँ भगवान देगा, है ना, भगवान बैठा है, हाँ बैठा है ना, पर वो कैसे देगा बेचारा, इतने सारे लोगों को देना है उसे, तुम मांगो तुम्हें देगा, उसने ये सिस्टम बनाया। आप बोलोगे भाई तू तो अंतर्यामी है, तू जान ले मैं क्या चाहता हूँ। अरे फिर तो कितनी सारी चीजें जा रहा है दिमाग में, कंफ्यूजन ना करो भगवान के लिए, बी क्लियर, नो, उनका भी काम आसान कर दो थोड़ा, क्लियर कट बोल दो आपको क्या चाहिए, ठीक है। मोस्ट पीपल वांट टू फील बेटर, तो क्या चाहिए भाई, अच्छा महसूस करना है। कैसे रहना है भाई, एनर्जी होनी चाहिए, कैसा चाहिए भाई, सेटिस्फैक्शन चाहिए। But yet, when you ask them to tell precisely what it is that they want, they have no answer.
You change your life the moment you set your goals and you start to seek out your dharma, Julian said, his eyes sparkling with the truth of his words. Have you ever met someone with a strange name and then started to notice that the name appearing everywhere in newspapers, on the television, and at the office? Or have you ever become interested in a new subject, let's say fly fishing, and then noticed that you couldn't go away anywhere without hearing about the wonders of fly fishing? This is but one illustration of the ageless principle Yogi Raman called Joriki, which I have since learnt means concentrated mind. Concentrate every ounce of your mental energy on self discovery. Learn what you excel at and what makes you happy. Maybe you are practicing law, but are really meant to be a school teacher, given your patience and love of teaching. Perhaps you are a frustrated painter or sculptor. Whatever it is, find your passion and then follow it. Now, now that I really think about it, it would be sad to reach the end of my life without realizing that I have some special genius that would have unlocked my potential and helped others, even in a small way. That's right. So from now, this moment onwards, be acutely aware of your aim in life. Awaken your mind to the abundance of possibility around you. Start to live with more jest. The human mind is the world's largest filtering device. When used properly, it filters out what you perceive as unimportant and gives you only the information you are looking for at that time. Superb. आपका माइंड एक बहुत एक्सीलेंट सर्वेंट है. अगर आपने माइंड में गोल्ड डाल दिया, हेल्थ, आई टेल यू माय एग्जांपल. जैसे मेरा हेल्थ मेरा टॉप प्रायोरिटी था पहले, क्योंकि इसी शरीर में जीना है दोस्तों. ये मेरा व्हीकल है. जितना मैं मेरी गाड़ी का ध्यान रखती हूँ ना, कि बेस्ट पेट्रोल, सर्विसिंग, ऑयल भी अच्छा वाला डलवाओ, उसकी सफाई करवाओ, अंदर से साफ सुथरा रखो, वैसे अपने शरीर का ध्यान रखती हूँ. बहुत ध्यान रखती हूँ. पहले नहीं रखती थी, पहले रफाड़ा टफाड़ा चलती थी, ताकत भी थी. अब जैसे उम्र बढ़ रही है तो लग रहा है नहीं, इसका ध्यान रखना है. बॉडी इज कॉलिंग फॉर हेल्थ. सो पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जैसे ही मैंने मेरा फोकस हेल्थ पे डाला, मुझे चीजें वैसे मिलने लगी. मेरा लाइफस्टाइल वैसे होने लगा. मेरे घर में चीजें वैसे आने लगी. मतलब बाय डिफॉल्ट फ्रूट एक दिन ऐसा नहीं कि जब फ्रूट ना आए. अभी पहले भी आता था, पर कैसे आता था, 25 किलो, 20 किलो, क्या आ गए, पपीते आ गए तो बस वही खा रहे हैं. फिर 5 दिन कुछ नहीं है क्योंकि किसी टाइम नहीं मिल रहा लाने. ठीक है, फिर एक साथ एप्पल्स आ गए. ऐसे अब क्या हो रहा है, एग्जैक्टली एवरी डे वी आर गेटिंग. करेक्ट. अभी कैसे हो रहा है, आई डोंट नो. बहुत डिसिप्लिन से आ रहा है फ्रूट्स. डिसिप्लिन से दही, डिसिप्लिन से छाछ बन रही है, डिसिप्लिन से सूप बन रहा है. पूरा डाइट चार्ट जैसे मैं चाहती थी. और बहुत ईज एंड ग्रेस से हो रहा है. ये वर्ड मैं यूज करूंगी, ईज एंड ग्रेस से हो रहा है. हेल्थ वाला योगा हो रहा है. यू विल बिलीव मी, इन द डेज ऑफ माय दिवाली डेज, आई वेंट फॉर अ हेल्थ रिट्रीट. हेल्थ रिट्रीट पर गई थी मैं खुद बॉडी को डिटॉक्स करने, जहां मैं 1.5 किलो 4 दिन में कम करके आ गई वजन, योगा करके. तो अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग. और ये कैसे हुआ, ये सब अपने आप से. योगा योग जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दिवाली के दिनों में. और एग्जैक्टली मैं घर पे उसी समय लक्ष्मी पूजन के दिन शाम को आ गई घर पे. और मैंने लक्ष्मी पूजन भी करी और मैंने हेल्थ रिट्रीट भी करा. ये है मैजिक. मैजिक ऐसे होता है. इंटेंशन आप रखो, करेगा यूनिवर्स. क्लियर इंटेंशन रखो, ठीक है. सो हियर ही सेज दैट स्टार्ट टू लिव विथ मोर जेस्ट. और हमारा माइंड एक ऐसा फिल्टर है, डिवाइस है एक. अगर आप उसको प्रॉपरली यूज करना सीख गए ना, वो आपके लिए एक ब्यूटिफुल अमेजिंग सर्वेंट बन जाएगा. सारा काम आपका अपने आप हो जाएगा. सरप्राइज हो जाओगे आप. Okay, at this very moment, as we sit here in your living room, there are hundreds, if not thousands, of things going on that we are not paying any attention to. There is a sound of the lovers giggling as they stroll along the broad walk, a goldfish in the tank behind you, the cool air being blown from the air conditioner, and even the beat of my own heart. The moment I decide to concentrate on my heartbeat, I start to notice its rhythm and its qualities.
Similarly, when you decide to concentrating your mind on your life's main aims, your mind starts to filter out the unimportant and focus only on the important. हमने हार्ट ऑफ द रोज में भी देखा ना, सारी कितनी सारी चीजें हो रही होती है, एयर कंडीशन का आवाज है, पंखे का आवाज है, बाहर गाड़ियों का आवाज है, यहाँ मेरे पति देव आ गए, दरवाजा बंद किया, यहाँ मेरा बेटा आया, उसने कुछ किया, कुछ पता नहीं, सिर्फ फ्लावर में फोकस एबिलिटी, माइंड की एबिलिटी है फोकस करना। तो जैसे जैसे आपने वो लिखा और फोकस किया, बाकी के बेकार के विचार तो आएंगे ही नहीं दिमाग में। गेटिंग माई पॉइंट? To tell you the truth, it's about the time I discovered my purpose. I said, don't get me wrong, there are a lot of great things in my life, but it isn't as rewarding as I think it could be. If I left this world today, I really can't say for sure that I have made that big a difference. सोचो, अगर आज आपको जाना पड़े, आपके रिटर्न टिकट पे आज की डेट छप जाए, भगवान ना करे, पर सबकी रिटर्न टिकट तो है ही, पर चलो आज की डेट, अभी चलना है भाई, चलो बाय बाय करना है, क्या हम छोड़ने के लिए तैयार हैं? तैयार है मतलब जाना तो है ही, तो क्या काम ठीक हुआ? कितने लोगों की जिंदगी में हमने डिफरेंस लाया? कितने लोग हमारी वजह से मुस्कुराए कि आज याद करेंगे, मिलेंगे, रूपाली हाँ अरे मस्त है, अच्छा, स्माइल करेंगे? कितने लोग, कितना डिफरेंस किया हमने? हाउ डज दैट मेक यू फील? डिप्रेस्ड दैट यू हैव टू गो एंड यू हैव नॉट मेड एनी डिफरेंस? बहुत टाइम था, बहुत मौके थे, पर मैंने कुछ करा ही नहीं, काश कर लेती। डू इट नाउ. I know I have talent. Actually, I was one heck of a good artist when I was younger. That was until the legal profession beckoned with the promise of a more stable life. Do you ever wish you made a painting your profession? I really haven't given it much thought. But I will say one thing. When I painted, I was in heaven. It really fired you up, didn't it? Absolutely. I lost the track of time when I was in the studio painting. I would get lost in the canvas. It was a real release for me. It was almost as if I transcended time and moved into another dimension. आपको ये कब फीलिंग आती है? क्या करते हो आप जब आप एकदम ही खुद को भूल जाते हो, एकदम कहीं गुम ही हो जाते हो और अचानक से वापस आते हो? जैसे ये पेंटिंग करने में खो जाता है, आप किस चीज में खो जाते हो? फाइंड आउट करो। जॉन, दिस इज द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग योर माइंड ऑन द परस्यूट दैट यू लव. Goethe said that we are shaped and fashioned by what we love. Maybe your dharma is to brighten the world with lovely scenes. At least start spending a little time painting every day. How about applying this philosophy to the things less esoteric than changing my life? I asked with a grin. This should be good, Julian replied. Like what? Let's say one of my aims, although a minor one, was to drop the spare tire I'm carrying around my waist. Where would I start? Simple. Spare tire मतलब ये कमर के पास जो लव हैंडल्स हो जाते हैं अपने साइड में। तो चलो एक सिंपल सा एम है, छोटा सा, कि भाई ये हट जाए, ऐसे शेप में बॉडी जैसे मैं बोल रही हूँ। तो क्या करेंगे हम? चलिए आप बताइए, क्या स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? Don't be embarrassed. You mastered the art of goal setting and goal setting by starting off small. चलो यही गोल दिखते हैं पहला फिजिकल में, कि साइड में जो हैंडल्स हैं अपने कमर के पास मोटे मोटे दिखते हैं। करेक्ट ना? इसने क्या बोला? टायर। मैं थोड़े हैंडल बोल रही हूँ, मेरे इतने मोटे मोटे टायर नहीं है, पर हैंडल है, समझ लो ऐसा हैंडल। तो कहाँ स्टार्ट करेंगे? ये लिखते हैं हम हमारी जर्नी, ठीक है, कि ये टायर से हम रीड आउट करेंगे। तो द जर्नी ऑफ 1000 miles बिगिन विद अ सिंगल स्टेप, आई आस्क्ड इंट्यूटिवली। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन पॉइंटर्स। जर्नल में ये पॉइंटर्स लिखें ताकि आप जब पढ़ें तो आपको ये याद रहे कि कोई भी बड़ी चीज एक छोटे छोटे स्टेप से शुरू होती है। पहला कदम तो उठा लो, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। कितने लोग वैष्णो देवी गए हैं, या जीवदानी माता मंदिर गए हैं, या बड़ी बड़ी यात्राएं गए हैं? स्टार्ट करते वक्त डर लगता है ना, बाप रे इतनी दिन की यात्रा कैसे होगी, इतनी सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही पहला कदम, दूसरा, तीसरा करते जाते हैं, हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिसाइसली, एंड गेटिंग गुड एट accomplishing लिटिल feats prepares you realizing the big ones. One second ना, there is something here. Okay. Precisely, and getting good at accomplishing little feats prepares you for realizing the big ones. So,
So, to answer your question squarely, there is nothing wrong with mapping out a full range of smaller goals in the process of planning your bigger ones. तो अगर हमारा बिगर गोल ये है कि मुझे बहुत अच्छा दिखना है, देख फॉर साइज एक्सेल से एल पे आ जाना है, प्रॉपर शेप में आना है, बहुत एनर्जेटिक रहना है, ये सब बड़ा गोल हो गया। तो छोटे छोटे गोल कैसे है, तो मैं अच्छी कैसे दिखूंगी जब मेरे ये एक्स्ट्रा हैंडल्स नहीं होंगे, मेरे यहाँ पर ऐसे फ्लैप्स नहीं होंगे, बॉडी फर्म होगी, ठीक है, स्किन क्लियर होगी, ये सब। फिर ये छोटा गोल कैसे आएगा, इसमें क्या खाऊंगी, क्या एक्सरसाइज करूंगी, क्या देखूंगी, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे, गेटिंग माय पॉइंट, मेरा रूटीन कैसा होगा, हु कैन हेल्प मी इन दिस, गेटिंग माय पॉइंट। तो मैं कौन से चैनल देखूं या मैं कौन से न्यूट्रिशनिस्ट से मिलूं, तो मुझे बताएगी कि क्या खाऊं जिससे मेरे वेट कम होगा, इंचेस कम होंगे, वेट नहीं इंचेस। ओके। सो तो प्राणिक हीलिंग में भी वैसे है यार, वेट लॉस बॉडी स्कल्पटिंग है प्रोग्राम, and I am at that. So we can do on our own self also. Okay. So precisely, and getting good at accomplishing little feats prepares you for realizing the big ones. So to answer your question squarely, there is nothing wrong with mapping out a full range of smaller goals in the process of planning your bigger ones. Julian told me that the sages of Savannah had created a 5-step method to reach their objectives and fulfill the purposes of their lives. It was simple, practical and it worked. एकदम सिंपल प्रैक्टिकल 5 स्टेप है उसमें। पहला स्टेप है, ध्यान से देखिए, द फर्स्ट स्टेप वाज टू फॉर्म अ क्लियर मेंटल इमेज ऑफ द आउटकम। सुपर। क्या करना है, दिमाग में एक क्लियर मेंटल आउटकम लेनी है। चलिए हम एक गोल ले लेते हैं, कोई भी। क्या लें, हेल्थ का ले लें साथ में, हेल्थ गोल ले लें हम लोग एक, सभी का हेल्थ गोल तो होगा ही, तो एक हेल्थ गोल ले लेते हैं, ठीक है, और एक बड़ा गोल हेल्थ का। बिगर गोल, तो माय बिगर गोल इज फ्रॉम एक्सेल टू बीएल, टू लुक वेरी यंग, 20 years younger. Okay. So skin is shining, glowing, beautiful, very energetic. अब एनर्जेटिक कैसे रहूंगी कि मैं पूरे बॉलीवुड नंबर पे डांस कर सकती हूँ। मैंने बोला ना मुझे बड़ा मजा आता है कोई भी एक गाने पे, वो है ना कजरा मोहब्बत वाला, पूरा उस पे डांस करूंगी पूरे गाने पे, या और एक कोई फुल एनर्जी वाला सॉन्ग पे, ठीक है। तो अभी ये अपने मेन गोल हो गया हेल्थ का। अब उसमें छोटे छोटे गोल्स लिखने हैं, उससे पहले मुझे मेंटल इमेज बनानी है। तो एवरीबडी सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आईज एंड सी योर सेल्फ इन योर माइंड। मिरर देखिए पहले, ऐसे ही खुद को नहीं देख सक पाओगे, पहले मिरर देखिए, क्योंकि आपने खुद को मिरर में देखा हुआ है बहुत बार। तो खुद को मिरर में देखिए कैसे दिख रहे हो आप, ठीक है। तो भी अपनी मेंटल पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। स्लोली स्लोली चलो बालों से शुरू करते हैं। एवरीबडी आर यू विथ मी, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर विथ मी, मेरे साथ हो। चलिए गुड। रिलैक्स, इनहेल एंड एक्सहेल, लीव योर बॉडी लूज, स्माइल स्माइल स्माइल, यू आर गोइंग टू मीट द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन योर लाइफ। चलिए आंखें बंद, स्माइल, इनहेल एंड एक्सहेल, बॉडी ढीला छोड़ दीजिए। मिरर देखिए अपने सामने, अब मिरर में खुद को देखिए, देख रहे हैं अब कैसे दिख रहे हैं पता है, अपने बाल देखिए, वाह, स्मूथ सॉफ्ट घने सिल्की बाल, जैसे आपको चाहिए, काले, मुझे गोल्डन वाले चाहिए, ब्लॉन्ड थोड़े से, थोड़े लाइट ब्राउन वाले। और कितने लंबे चाहिए आप देखो, कितने लंबे हैं, कैसे हैं। आपने एक पोनी बांधा हुआ है ऊपर, यहाँ से खोले हुए हैं बाल, सुपर, मस्त मस्त मस्त, ब्यूटीफुल, वेरी सिल्की, वेरी सॉफ्ट, और बहुत सारे घने घने बाल, बहुत अच्छे दिख रहे हैं, प्यारे प्यारे। अपने अभी ललाट पे आ जाइए, माथे पर चमक, शाइनिंग, अपनी आंखों पर आ जाइए, ट्विंकल है आंखों में, ट्विंकल, नो बैग्स, नो दिस wrinkles, you're looking very beautiful eyes, charming eyes, wow, look at your skin, clear, bright, tight एकदम skin, मस्त, tight skin, come to your shoulders, come to your chest, कैसे चाहिए, एकदम मस्त, स्ट्रॉन्ग, कसी हुई शेप में, करेक्ट, ना ज्यादा ना कम, it's shapely. Then come to your कमर, how it is, come to your hands, your arms, your fingers,
Correct. Nice shape, strong. Fingers are strong. Come back, come to your tummy. Oh, your cute tummy. How it is. Oh, एकदम पीछे लगा हुआ है. इमेजिन करें आपने एक टाइट ड्रेस पहना हुआ है, फिटिंग से बिल्कुल. वो कौन पहनती थी अपनी, क्या नाम था वो लड़की का, मुमताज हीरोइन थी. वो लोग घुसते कैसे थे ड्रेस में यार, एकदम टाइटम टाइट ड्रेस चिपका हुआ वैसा ड्रेस है. पेट एकदम पीठ से लगा हुआ है. वाओ. चलो ड्रेस चेंज करके साड़ी पहन लेते हैं. साड़ी में इतने गजब के सेक्सी लग रहे हैं. ब्यूटीफुल यार, क्योंकि पेट पीछे है ना. नाभि देखिए एकदम मस्त. कमर, चलिए पीछे से देखते हैं अपना शेप. एकदम स्लिम ट्रिम, वेरी नाइस. वेस्ट इज एग्जैक्टली एज यू वांट. करेक्ट. साइज देख लेते हैं एग्जैक्टली. मेरे ख्याल से 38 इज ओके. मेरा 38 है. आप अपना देख लीजिए. 36 चाहिए, 38 चाहिए, 40 चाहिए, एज इट इज जैसे आपको चाहिए. अब आ जाइए अपनी टांगों पर. एकदम स्ट्रांग टांगे. अरे घुटने तो एकदम टकाटक. 1 मिनट में नीचे बैठ जा. 1 मिनट में पलाती मार के उठ जा चकाट करके. वाह वाह वाह. टांगे. आ जाइए अपने पैरों पर. मजबूत पैर, मेरे वेहिकल्स. जैसे कि वो स्केटिंग होते हैं ना, स्केटिंग वैसे ग्लाइड करते हैं पैर मेरे. वाह क्या एनर्जी. सुपर सुपर सुपर. चलिए अब पैरों से ऊपर जाते हैं. ऊपर देखते हैं अपने आप को. पूरा व्यू देखते हैं. हाउ डू यू लुक. सो ब्यूटिफुल. So energetic, so healthy. Your eyes are radiating sparkle. Cheeks are pink. Beautiful. Wow. Slowly open your eyes. Could you see your image? खुद को देख पा रहे थे? अच्छा लगा? Share your experience. Yes. Stop this here. How was it for you? Ma'am, I could see Smita 10 years back. Hmm. Yes. Good. You could see yourself. Okay. Does it inspire you? Does it make you happy? Yes. Does it make you to Hmm. write your goals now? Hmm. आप लिखो तो सही. आप चिंता मत करो कि अरे यार कौन उठेगा योगा करने. अरे यार जुम्बा अरे छोड़ो ना, पहले आप लिखो तो सही. अगर आपको अपनी ये इमेज क्लियर दिखती है, माइंड में क्लियर दिखती है, अगर आपको अपने मस्त घनेरे सुनहरे बाल दिखते हैं, ठीक है, क्लियरली हो जाएंगे. क्योंकि हर चीज 2 बार होती है. पहले माइंड में और एक बाहर. डज इट इंस्पायर यू फ्रेंड्स? यस कविता. आपको टेक्निक समझा खुद को माइंड में कैसे आराम से रिलैक्स करके देखना है. और अगर आपको मोर पावरफुल होना है तो हार्ट ऑफ द रोज मेडिटेशन करने के बाद 5 मिनट बैठ के अपने आप को ऐसे देखिए. 5 मिनट भी नहीं लगे हमें. करेक्ट. हार्डली 2 मिनट्स वी टुक. ऊपर से नीचे तक सारे ऑर्गेन्स. फिर आप ऐसे अपने ऑर्गेन्स को भी देख सकते हो. एकदम परफेक्ट कंडीशन में, परफेक्ट कंडीशन में. मे बी आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम है. आप देखिए आपकी आंतड़ियां एकदम मस्त. गेटिंग माय पॉइंट. आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम मस्त. आप ऐसे देखो कि आप बोल रहे हो लोगों को अरे मैं तो पत्थर भी खाती हूँ तो हजम हो जाते हैं मुझे. तो बोलते अरे नहीं मैं काकड़ी, अरे मैं सब खाती हूँ मुझे सब हजम हो जाता है. अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं. कैन यू इमेजिन सेइंग दैट टू पीपल. मेरे पति बोलते हैं ऐसे. उनसे सीखा है मैंने. अरे मैं कुछ भी हजम कर लेता हूँ. मुझे पत्थर भी हजम हो जाते हैं. आई एम सरप्राइज्ड. और सच में वो कुछ खाते बीमार नहीं पड़ते. टच वुड. है ना. चलिए आगे जाना है. डू वी शैल वी कंटिन्यू फॉर 15 मिनट्स और वी स्टॉप एज यू से. Yes, something this at least. कंप्लीट करें इतना. Hmm. ठीक है ये कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्ट स्टेप वाज टू फॉर्म अ क्लियर मेंटल इमेज ऑफ द आउटकम. तो फ्रेंड्स मैंने आपसे ये एक्सरसाइज करवाई अभी. क्लियर मेंटल इमेज आउटकम की लानी है. आउटकम की. आप अभी कैसे दिख रहे हो वो नहीं, आप कैसे दिख रहे दिखोगे. आपका एम होने के बाद वो देखा हमने. सिमिलरली अगर यही पैसों के बारे में है, अपने हेल्थ लिया, तो कैसे देखोगे मेंटल पिक्चर खुद की. कैसे चाहिए भाई. मेरे को तो रोज दिखता है मेरा वॉलेट और खचाखच नोटों से भरा हुआ. एकदम 500 500 की नोटें, 100 100 की नोटें, 200 की नोटें. मतलब लगता है कि यार इतने बड़ा क्या वॉलेट रखूं. अभी नोटों की साइज वाला ही वॉलेट है ना, खचाखच भर गया है. वो लेडीज वॉलेट आता है. मेरे ड्रॉवर है उसमें देखती हूँ मैं पूरा गोल्ड भरा हुआ. और क्या आउटकम देख सकते हो आप. बांट रहे हो पैसे.
किसी को कुछ कोर्स करना है, ला भाई मेरे से ले ले, बाद में दे देना, कोई बात नहीं, ले। बेटी को कॉलेज भेजना है, पैसा, अरे आ जाओ कम, आई विल गिव यू। पता चले कोई एनजीओ में, अरे मैं देती हूँ। इतना है ना, क्या करेंगे, कहाँ खर्च करूं, चलो दे देती हूँ। वॉट एवर, इट्स अप टू यू। आप क्या चाहते हो? पैसों के बारे में आप कैसी मेंटल इमेज देखना चाहते हो खुद को? क्या ब्रांडेड पहना है आपने, सोने का चश्मा लगाया है, हीरे की अंगूठियां पहनी है, नीता अंबानी स्टाइल आप कपड़े पहन रहे हो, आप कपड़े रिपीट नहीं करते, आपकी चॉइस। पैसों के लिए आप क्या चाहते हो, कैसे पैसे, इतने पैसे कि आप दे रहे हो लोगों को बिना सोचे कि वो वापस आएंगे कि नहीं। खुश हो रहे हो, अच्छा है, थोड़े ले जाए, कम हुआ, अच्छा है। दिवाली में फरार में बांटते हैं ना सबके घर, मुझे बड़ी मजा आती है, मिठाइयाँ आती है ना इतनी। तो ऐसे लगता है कि किसी को लाइक कोई आए तो उसको देवे ही हम, क्योंकि इतनी जमा हो गई है ना। आओ भाई आओ, आपको मिठाइयाँ दे हम, आइए जाकर देकर आए। उसी तरह पैसों, इतने पैसे हो कि भाई कोई आए हम उनको देवे पैसे, लो भाई लो, मजे करो आप भी। ऐसे भी आप मेंटल पिक्चर बना सकते हो आउटकम की, ठीक है, दैट इज फर्स्ट स्टेप। इफ दिस वाज टू लूज वेट, Julian told me that every morning just after I woke up, I was to envision myself as a lean, fit person full of vitality and boundless energy. Clearer this mental picture, the more effective the process would be. He said that the mind was the ultimate treasure house of the power, and this simple act of picturing my goal would open the gateway to the actualization of this desire. Step 2 was to get some positive pressure on myself. Step 1 समझ में आया, विजुअलाइजेशन सबका, मेंटल पिक्चर किसकी, आउटकम की, हो चुका है उसके बाद। दूसरा स्टेप है पॉजिटिव प्रेशर डालना खुद पर। द मेन रीजन पीपल डू नॉट फॉलो एनी resolutions they make is that it is too easy to slip back into their old ways. मतलब 4 दिन करते हैं, 5वें दिन छूट जाता है। Pressure is not always a bad thing. Pressure can inspire you to achieve great ends. People generally achieve magnificent things when their backs are up against the wall and they are forced to tap into the wellspring of human potential that lies within them. How can I create this positive pressure on myself? I asked, now thinking about the possibilities of applying this method to everything from getting up earlier to being more patient and loving father. तो ये आप अपने रिलेशनशिप में, अपने बिहेवियर में भी लिख सकते हो कि आप कैसे, क्या चाहते हो ना, कैसी लाइफ जीना चाहते हो। तो मैं ऐसी बंदी होना चाहती हूँ कि जिसके साथ सबको समय बिताना है। तो ऐसे मैं कैसे बनूंगी कि हर कोई मुझे ही चाहता है और मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। When can I become that loving? When I listen to people. When can I listen to people? When I am patient. मुझ में सब्र है, मुझ में अंडरस्टैंडिंग है। जब कोई आता है मुंह खोलता है, आ गया यार, पकाएगा वही बकवास अपना, रो तो दो अभी, ये बैठ के अपना कंप्लेन ऐसे। या आई एम कंसर्न, आई अंडरस्टैंड, ऐसे नहीं कि मैं उसी में बह जाऊं, मैं भी रोने लग जाऊं उसके बाद, नॉट लाइक दैट। आई एम स्ट्रॉन्ग लाइक अ लाइट हाउस, गिविंग लाइट टू दैट पर्सन, इसलिए वो पर्सन को मेरी ऑरा में बैठना अच्छा लगता है, ना कि मैं उसके साथ बह जाऊं। करेक्ट ना, तो मैं दरवाजे बंद कर दूं, नहीं। हाउ कैन यू बी लविंग, टू दैट आई हैव टू थिंक, आई हैव टू मेक माई पिक्चर। whoever comes in my contact is so happy, so happy. He gets some ideas, he gets motivated, he gets inspired. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये भी आप लिख सकते हो मेंटल पिक्चर की, मैं कैसी हूँ, मैं इतनी प्यारी नानी हूँ, मैं इतनी अच्छी दादी बन रही हूँ, या मैं इतनी अच्छी माँ हूँ कि मेरा बेटा मुझसे लाइक सिर में गोदी में सिर रख के सारी बातें बता रहा है कि मम्मा आज ना मैंने एक लड़की को ऐसे बात करी, फिर वो लड़की ने मेरे साथ, यू कैन इमेजिन दैट, राइट? रिलेशनशिप ऐसे आप विजुअलाइज कर सकते हो, ठीक है। सो हाउ टू पुट पॉजिटिव प्रेशर ऑन योर सेल्फ, how you can become a patient and loving father. There are a whole host of ways to do this. One of the best is the public pledge. Wow! और इससे बेटर क्या होगा कि यहाँ पर आप प्लेज लोगे, जैसे कविता ने प्लेज लिया है कि वो आज 2-2 गोल सब में लिखकर ही सोएगी, और रूपाली ने बोला है कि वो सारे गोल्स लिखने वाली है, क्लियरली डिफाइंड। यस, ये प्लेज है। तो पब्लिक प्लेज, टेल एवरीवन you know that you will lose excess weight and write that novel or whatever goal might be. तो ये सबको बता देना है, करेक्ट? जैसे सिर्फ यहाँ ग्रुप में नहीं, आसपास भी। तो क्या होगा, लोगों को बड़ी चिंता होती है अपनी,
आपने बोला ना वजन कम करोगे और आप पतले नहीं दिखे तो बोलेंगे क्यों, तू तो बोल रही थी ना वजन कम करेगी, क्या हुआ? करेक्ट, सो दे विल होल्ड यू टू अकाउंट। तो भाई बता दो, जाहिर कर दो, जग जाहिर कर दो, ठीक है? आसपास के लोगों को तो बता ही दो। सो वंस यू मेक योर गोल नोन टू द वर्ल्ड, देयर विल बी इंस्टेंटली अ प्रेशर ऑन यू टू वर्क टुवर्ड्स इट्स फुलफिलमेंट, सिंस नो वन लाइक्स टू लुक लाइक अ फेलियर। In Sivana, my teachers used more dramatic means to create this positive pressure I speak of. They would declare to one another that if they did not follow through on their commitments, such as fasting for a week or getting up daily at 4 a.m. to meditate, they would go down to the icy waterfall and stand. भाई इतना तो हम नहीं कर सकते. Stand under it until their arms and legs went numb. बाप रे बाप. लोग बोलते थे अगर मैंने ये नहीं किया तो ये करूंगा. What is at stake? तो अगर स्मिता ने 10 किलो वेट कम नहीं किया तो वो क्या करेगी? करेक्ट, तो प्रगति को 1 लाख का रुपए देगी, चेक देगी, ठीक है, जो वो ऑनर करेगी। अब अगर उसे 1 लाख रुपए देने हैं तो भाई काम करना है, तो व्हाट इज एट स्टेक? ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या करोगे। गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर ये नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करूंगी कि मैं जब रिट्रीट से आई तो वहां पर चाय बंद थी ना, चाय नहीं मिलती, वो दूध वाली चाय पीते हैं। अब मैंने ना ठंडियों के लिए मस्त चाय पत्ती स्पेशल लाकर उसमें इलायची, लवंग, दालचीनी वगैरह डाल के ना, मसाले बहुत बढ़िया सी चाय पाउडर बना के रखी थी, और अदरक वदरक डाल के। अब चाय पीना बंद, अब मैंने डिक्लेयर कर दिया मैं चाय नहीं पीती हूँ। माँ के घर गई थी, वहां गेट टुगेदर में गई थी, बढ़िया सी चाय बन रही थी, आइए आइए चाय पीते हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने तो बंद कर दिया है। तो मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगी, ठीक है। अब क्या हुआ, माँ के घर गई तो मम्मी ने कहा हाँ थोड़ी सी चाय पी ली। मैंने कहा नहीं माँ, मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। अब घर में पति को आदत है, चाय बनाते हैं तो हमेशा 2 कप बनाते हैं, खुद बनाते हैं, फिर मुझे देखते बाहर बैठे तो ले आते हैं मेरे लिए भी। तो अब वो बना रहे हैं इतने दिनों से रोज चाय, और आधा कप मेरे जितनी एक्स्ट्रा बन जा रही है, और मैं उसको रोज फेंक दे रही हूँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा। मैं उन्हें कहती हूँ भैया एक्स्ट्रा आप मत बनाया करो। मुझे पता है उनका जब तक हैबिट। अब आज मजाक क्या हुआ पता है, पति ने चाय नहीं बनाई एक्स्ट्रा, और मुझे बड़ी आज आज मौसम इतना सुहाना था, लगा थोड़ा सा तो भाई चाय पीना चाहिए। पॉइंट आई एम मेकिंग इज, क्योंकि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैंने चाय छोड़ दी है, पति ने बनाई नहीं तो मुझे मिली नहीं। अब मैं किस मुंह से मांगू कि भैया आज मुझे मन हुआ है चाय पीने का, ठीक है। तो एक बार आपने इसे डिक्लेयर कर दिया ना, तो आप उस पे अड़े रहोगे। So this is it. This is an extreme illustration of the power that pressure can exert on building of good habits and attainment of goals. Extreme might be an understatement, Julian. What a bizarre ritual. Extremely effective though. The point is simply that when you train your mind to associate pleasure with good habits and punishment with bad ones, ये बहुत प्यारी सी लाइन है। आप अपने बच्चों को भी वैसे कर सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो अपने माइंड में। क्या ट्रेनिंग है पता है? गुड हैबिट्स प्लेजर मिलता है, जबकि हम उल्टा करते हैं, गुड हैबिट्स में पेन आता है, 4 बजे उठना है और बड़ा दर्द हो रहा है और बड़ी मुश्किल। बी हैप्पी विद दैट। एंड पनिशमेंट विद बैड वंस, योर वीकनेसेस विल क्विकली फॉल द वे साइड। You said there were 5 steps to follow to make my desires come true, I said impatiently. What are the remaining 3? First one, mental picture. Second one क्या था? Positive pressure. पॉजिटिव प्रेशर। डिक्लेयर कर दो, खुद के ऊपर प्रेशर डालो, ठीक है, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। ओके, अभी बाकी के 3 स्टेप्स क्या हैं? यस जॉन, स्टेप 1 इज टू हैव क्लियर विजन ऑफ योर आउटकम। स्टेप 2 इज टू क्रिएट पॉजिटिव प्रेशर टू कीप यू इंस्पायर्ड। द थर्ड स्टेप इज अ सिंपल वन, नेवर सेट अ गोल विदाउट अटैचिंग अ टाइमलाइन टू इट। यस, चलिए, नवंबर आ रहा है, अक्टूबर जा रहा है, साल जा रहा है, तो आप अपना टाइमलाइन डालिए। स्मिता टाइमलाइन डालो, 10 किलो कब तक कम करोगी? सभी लोग जो भी गोल्स लिखे हैं उस पे अपना टाइमलाइन डालो, डेट डालो, न्यू ईयर पार्टी में आप क्या पहनोगे, कैसे दिख रहे हो 31st नाइट पे। वाह, बल्ले बल्ले। 31st नाइट, हाउ आर यू स्पेंडिंग, हाउ मच मनी डू यू हैव, फाइनेंशियल गोल, हेल्थ गोल्स, ओके। So that is it. To breathe life into your goal, you must attach a precise deadline to it. It is just like you are preparing cases for court. You always focus the attention on the ones the judge has scheduled to be heard tomorrow rather than the ones without any court date.
Oh, and by the way, Julian explained, remember that a goal that is not committed to the paper is no goal at all. तो हवा में गोल बनाना नहीं, कागज पे लिखा हुआ होना चाहिए. Go out and buy a journal. I hope सबके पास जर्नल होगी इस बुक की. Yes or no? Be honest and tell me. वही ग्रेटिट्यूड वाली जर्नल यूज करो कि अलग बुक बनाई है इसके लिए? हाँ, पॉइंटर्स भी लिखने हैं हमें और अपना. मेरे पास भी है, मैं आप लोग को दिखाऊंगी पुरानी 20 साल पुरानी वाली डायरी जिसमें मैंने मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी के पॉइंटर्स लिखे थे. तब तो मुझे इतना पता भी नहीं था. 20 साल, 20-25 साल पहले होगा. मैं दिखाऊंगी आप लोग को, ठीक है? कल शेयर करूंगी. ओके, so go out and buy a journal, a cheap foil notepad will do. Call this your dream book. आहा, आज इसका टाइटल मिल गया. इस पे हम लिखेंगे ड्रीम बुक. And fill it with all your desires, objectives, and dreams. Get to know yourself and what you are all about. Don't I already know myself? Most people don't. They have never taken time to know their strengths, their weaknesses, their hopes, their dreams. ये आप लिख सकते हो. आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं? ये भी एक कॉलम बनाइए ये डायरी में. आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है? तो मेरी स्ट्रेंथ है कम्युनिकेशन. मुझे बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती किसी से भी बात करने में, डर नहीं लगता. ये मेरी स्ट्रेंथ है. वीकनेस है मेरी, आई जज पीपल. उससे भी ज्यादा वीकनेस क्या हो सकती है मेरी? चिली 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 प्रगति प्रगति, गुस्सा आ जाना. फड़क से, फड़क से. एक बोलते हैं ना, ऐसे करंट लग जाता है, फड़क से गुस्सा आ जाता था. अभी नहीं आता, आ जाता था. ये मेरी वीकनेस थी. ठीक है, तो आपके होप्स और आपके ड्रीम्स क्या है? तो चाइनीज डिफाइन इमेज इन दीज टर्म्स. देयर आर थ्री मिरर्स दैट फॉर्म अ पर्सन रिफ्लेक्शन. द फर्स्ट इज हाउ यू सी योर सेल्फ. ये आपको लिखना है. ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है. हाउ यू सी योर सेल्फ. अगर आप मिरर में खुद को देखते हो तो पहले आप देखते हो कि आप कैसे दिख रहे हो. द सेकेंड इज हाउ अदर्स सी यू. आप वो देखते हो कि लोगों को ये कैसे दिखेगा. एंड थर्ड, mirror reflects truth. Know yourself, John. Know the truth. Divide your dream book into separate sections for goals relating to different areas of your life. For example, you might have section for your physical fitness goal, financial goals, and personal empowerment goals, relationship goals, social goals, perhaps most importantly, your spiritual goals. Hey, that sounds like fun, but I never thought about doing something as creative as that for myself. I really should start challenging myself more, I said. I agree. Another particularly effective technique I learned is to fill your dream book with pictures. This is like our vision board of things you desire and images of people who have cultivated the habits, talents, and qualities that you hope to emulate. मतलब आपको एक लविंग फादर बनना है या लविंग मदर बनना है, तो आप एक लविंग मदर की पिक्चर लगाओगे. ठीक है, तो मैं मेरी माँ की पिक्चर लगा सकती हूँ. मेरी मम्मी ने मुझे कभी जिंदगी में नहीं डांटा, कभी नहीं डांटा. मेरे को लगता है किसी को भी नहीं डांटा है हम बहनों में से. कभी नहीं. हाथ लगाना तो बहुत दूर की बात है. जबकि मैं वैसी नहीं थी. मैं तो बहुत चिल्लाती थी बच्चों पे. मेरे बच्चे अभी भी बड़े हो गए, बोलते मम्मी हमें लगता है तुम चिल्लाओगी, आप चिल्लाओगे. मतलब अरे पागले हो क्या आप, मैं कभी चिल्लाई ही नहीं है. दैट वे. सो पुट द पिक्चर्स हाउ यू वांट टू बी. अगर आपको पेशेंट होना है, एकदम सब्र वाला, तो सब्र और सहनशील बंदे की फोटो लगाएं. आपको लगता है कि ये बंदा बहुत सहनशील है तो उसकी फोटो लगाएं. ठीक है, दैट विल रिमाइंड यू कि आपको सहनशील होना है. ओके. मतलब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम योर विजन बुक वाला. विजन बोर्ड से ये अलग है. मुझे अच्छा लगा ये. दिस इज गुड. गेटिंग बैक टू यू एंड योर स्पेयर टायर. हाँ, ये वाला अपने टायर लव हैंडल्स. इफ यू वांट टू लूज वेट एंड बी इन आउटस्टैंडिंग फिजिकल शेप, पेस्ट अ पिक्चर ऑफ अ मैराथन रनर और एन एलीट एथलीट इन योर ड्रीम बुक. इफ यू वांट टू बी द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट हस्बैंड, why not clip out a picture of someone who represents this, perhaps your father, हाँ जैसे मेरा मॉम, and put in your gender. जैसे मुझे एक बहुत अच्छी माँ बनना है, एक ऐसी माँ जिससे बच्चे कुछ भी शेयर कर सकते हैं बिंदास. करेक्ट. तो मैं मम्मी का फोटो जरूर लगा के आई विल रिमाइंड माई सेल्फ. करेक्ट. इन द रिलेशनशिप सेक्शन, तो रिलेशनशिप सेक्शन में आपको वो लगाना है. इफ यू आर ड्रीमिंग ऑफ अ मैंशन बाय द सी और अ स्पोर्ट्स कार, फाइंड एन इंस्पायरिंग पिक्चर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड यूज them for your book of dream. ये पेज कंप्लीट करें. It is 10:30. Shall we complete this page? Okay. This review, then review this book daily, even for a few minutes. अब ये बुक कहीं पास में ही रखनी है और रोज मैगजीन देखते हैं वैसे देखना है. Make it your friend.
The results will startle you. This is pretty revolutionary stuff, Julian. I mean, though these ideas have been around for centuries, everybody I know today could improve the quality of their lives by applying even a few of them. My wife would love to have a dream book. She would probably fill it with pictures of me without my notorious belly. It is really not that big, Julian suggested in consoling me. Then why does Jenny call me Mr. Donut? I said, breaking into a broad smile. Julian started to laugh. I had to follow. Soon the two of us were howling on the floor. I guess if you can't laugh at yourself, who can laugh? Who can you laugh at? I said, giggling. वेरी ट्रू. अब कोई मजाक ना, खुद का मजाक खुद पे हंसने आना चाहिए. हाँ, किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम से मुंह बन जाता है, हमें बुरा लग जाता है. नोटिस करो खुद को. इतना सिग्निफिकेंस, इतना खुद को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है. किसी ने कुछ बोल भी दिया, आप भी हंस लो. पर एक मुझसे ऐसे होता था पहले, कोई ड्रेस पहनी ना और कोई मजाक में बोलता था, अरे ये तो ऐसे लग रहा है कि हैंगर पे लटकाया है. बड़ा बुरा बुरा लगता था. पर फिर मैं अभी हंस के और ऐसे स्कैरक्रो बन के दिखाती, अब कैसा लग रहा है. Understand? You learn to laugh at yourself. It's not a big deal. Not a big deal. This keeps changing. Change होता रहता है. ठीक है. So be like a child. Be more playful like a child. Okay. So very true, my friend. When I was chained to my former lifestyle, one of my main problems was that I took life too seriously. इतना serious मत लो life को. Now I am much more playful and childlike. I enjoy all the life's gifts, no matter how small they are. ये एक आपका एक्शन फॉर द वीक है. एंजॉय एवरीथिंग, बी लाइक अ चाइल्ड. कुछ भी इतना सीरियसली नहीं लेना है. अरे उधर क्या, कहाँ पर वो फिलीपींस में बाढ़ आ गई, ओ माय गॉड, टेंशन. अरे यहाँ पर ये गठबंधन हो रहा है, अरे भाई ठीक है, चिल. मेरे पति बड़ा सीरियस वो देखते हो और उससे चिंता करते हो. बारिश आई, अभी सब कुछ सारी फसल नष्ट हो जाएगी, अभी ये हो जाएगा. अरे भाई ठीक है, आप तो सेब खाओ, ब्लेस करो, चिंता मत करो. ब्लेसिंग के लिए मैं हूँ. रोज प्रेयर के बाद हम ब्लेस करते हैं मदर अर्थ को. आप सेब खाओ, अभी तो आपके घर में सेब है, अमरूद है, अनार है. हैं, उसके मजे नहीं ले रहे हो आप बैठ के, इतना चिंता कर रहे हो न्यूज लगा के, अभी बारिश आई ना, अभी ये हो जाएगा, अभी वो हो जाएगा. अरे ठीक है यार, चिल. मतलब उनके ना फेस पे सीरियसनेस आ जाती है एकदम. ये मत करिए आप. ठीक है. तो enjoy all the life's gift, be childlike. But I have a digressed. I have so much to tell you, and it is all flowing out of me at once. Back to step 5. Five-step method to attain your aims and realize your goals. Once you have formed a clear mental picture of your outcome, second, you have created a little pressure behind it and set a deadline, and next, commit it to a paper. The next step is to apply what Yogi Raman called the magic rule of 21. The learned men and women of his world believed that for a new behavior to crystallize into a habit, one had to perform that new activity for 21 days in a row. तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए बोल रहे हो कि मैं 15 मिनट ब्रिस्क वॉक करूंगी, तो ये 15 मिनट ब्रिस्क वॉक आपको 21 डेज इन अ रो करना है, एक साथ करना है. आप हार्ट ऑफ द रोज कर रहे हो तो 21 डेज करना है. डेट लिख के रखिए, अपने कैलेंडर में मार्क कीजिए कि HRM, हार्ट ऑफ रोज मेडिटेशन किया मैंने. एवरी डे 21 डेज, पुट इट इन योर कैलेंडर. ओके. एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट 21 डेज, ये हम कल देखेंगे. लेट्स स्टॉप हियर. Superb. Did you enjoy the session, friends? It was very fast. I don't know. I hope you enjoyed it and you learned a lot and you are inspired. Yes?